News coming in from Bangladesh. In breaking updates in the 2026 Bangladesh general elections, the Bangladesh Awami League has outrightly rejected the election schedule announced by the country's interim government's election commission for February 12, 2026, terming the move by the EC as illegal and accusing Bangladesh's Chief Advisor Muhammad Yunus-led government of being killer, fascist and clique that cannot ensure a free and fair vote. So that's the latest we are getting to know at this point of time in terms of this. And joining me on the telecast is my colleague Renik Datta. Renik, take us through the details that are coming in now. The fact that the election dates for Bangladesh has been announced. Now, Awami League has rejected this and has also called this as move by the EC as illegal. देखिए 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है जिसमें करीब 13 करोड़ के ऊपर मतदाता एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इसी को देखकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ही डिक्लेयर किया गया है कि 12 फरवरी पूरा देश भर में चुनाव किया जाएगा। मगर ये इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के बाद ही आवामी लीग की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। आवामी लीग की तरफ से इसको इलीगल कहा गया है और इसको रिजेक्ट किया गया है। आवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी हालत पर मोहम्मद यूनुस का रहते हुए इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसके रहते हुए किसी भी हालत पर बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा और इलेक्शन कमीशन भी मोहम्मद यूनुस के कहने के बातों के कहने पर ही चल रहा है और मोहम्मद यूनुस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा भी आवामी लीग की तरफ से आरोप रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन को लेकर बांग्लादेश में जो चर्चा चल रहा था और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। उसके बाद ही 12 फरवरी का डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल अभी देखना पड़ेगा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन का, दूसरी तरफ आवामी लीग ये डेट को ठुकराया गया है आवामी लीग की तरफ से। तो फिलहाल इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि इसके अगले पड़ाव आवामी लीग की तरफ से क्या लिया जाएगा, क्या शेख हसीना की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा कि नहीं और आवामी लीग के जो कैंडिडेट्स है वो इंडिपेंडेंट तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। All right, Renik, stay on with us. We have more news coming in. Now, in a strongly worded statement, the party took to X to write, and I quote, the Bangladesh Awami League has closely reviewed the election schedule announced by the illegal occupying killer fascist Yunus clique's illegal election commission. It is now clear that the current occupying authority is entirely biased and that under its control it is impossible to ensure a fair and normal environment where transparency, neutrality and the people's will can be reflected. And the Bangladesh Awami League rejects the announcement of the election schedule that excludes the representatives of the majority of the country's people, unquote. But before that, I would like to show on the screen what exactly was the full statement by the Bangladesh Awami League on my touchpad, if my PCI crew could show, in terms of the statement that was given by the Bangladesh Awami League about the date of the announcement of the election in Bangladesh, and they have stated that the Bangladesh Awami League has closely reviewed the election schedule announced by the illegal occupying killer fascist Yunus clique's illegal election commission. It is now clear that the current occupying authority is entirely biased and that under their control it is impossible to ensure a fair and normal environment where transparency, neutrality and the people's will can be reflected. And they have also stated the elections are the measure of public popularity. The Awami League is an election-oriented party. The Awami League has the strength, courage and capacity to stand before the people. Since its founding, the Bangladesh Awami League has taken part in 13 elections and winning 9 of them and forming the government. Attempting to hold an election while excluding the Bangladesh Awami League, the party that led the liberation war along with other political parties and the majority of the population, is a scheme to push the country and the nation into a deep crisis. And to prevent the current crisis from escalating, all restrictions imposed on the Bangladesh Awami League must be lifted
lifted all fabricated case against Banga Bandhu's daughter Sheikh Hasina. National leaders and people from all walks of life must be withdrawn. All political prisoners must be released unconditionally, and the current deceitful occupying government must be replaced with a neutral caretaker government to hold a free and participatory election. And therefore, the Bangladesh Awami League rejects the announced election schedule that excludes the representatives of the majority of the country's people. Now, Renik, in terms of that, now what exactly is the political situation in Bangladesh after the announcement of this election? Commission has announced the date of the election in Bangladesh. What exactly is the take in terms of that? And also, this also comes after Sheikh Hasina's ouster as well. हाँ, एक तो देखिए, अगस्त महीने में शेख हसीना चले जाने के बाद से बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल हलचल वो बिगड़ चुका था, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना जाने के बाद यानी आवामी लीग का सरकार खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है, और उसके साथ साथ ही इस चुनाव में आवामी लीग को किसी भी हालात पर पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जाएगा, ऐसा ऐलान भी इससे पहले किया गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आवामी लीग को बैन किया गया है, यानी इस चुनाव में आवामी लीग पे कोई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मगर दूसरी तरफ आवामी लीग की तरफ से ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आवामी लीग का जो मेंबर्स है उनकी तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या तो दूसरे नाम पे पॉलिटिकल पार्टी वो लोग फॉर्म करके वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने जा रहा है बीएनपी और छात्र संगठन का पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि छात्र संगठन की तरफ से ही जो शेख हसीना के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था मोहम्मद यूनुस को भी छात्र संगठन की तरफ से ही सरकार में बैठाया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट में चीफ एडवाइजर के रूप में बैठाया गया था। मगर उसके बाद छात्र संगठन ने मोहम्मद यूनुस का हाथ छोड़ दिया था। उसके बाद छात्र संगठन की तरफ से नया पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार किया गया था, और वो पॉलिटिकल पार्टी में मोहम्मद यूनुस उन लोगों के साथ शामिल नहीं थे। तो इसमें छात्र संगठन भी जो चुनाव आने जा रहा है उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम पे ही वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी तरफ खालिदा जिया का बीएनपी पार्टी, उनके साथ भी मोहम्मद यूनुस का रिलेशन जो है वो बहुत ही करीब है, और देखने को जाए तो बांग्लादेश का और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ भी मोहम्मद यूनुस खुद का जो तालजोल वो मिला के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ बीएनपी छात्र संगठन और दूसरे से पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से ये पार्टिसिपेट किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो आवामी लीग का जो कैंडिडेट है वो लोग अगर इंडिपेंडेंट तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस जगह में आएगा कि मोहम्मद यूनुस कौन से जगह से कौन से पॉलिटिकल पार्टी को होकर वो चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मोहम्मद यूनुस का नहीं दिखने को मिला है। तो इस जगह में सवाल आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस इतना जल्दी खुद का सत्ता छोड़ने के लिए राजी होंगे? क्या मोहम्मद यूनुस दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, या तो मोहम्मद यूनुस किसी भी हालत पर दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेस होकर इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? इस तरीके का जो इक्वेशन ही अभी फिलहाल बांग्लादेश का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सामने आ रहा है। All right, Renik, thank you so much for joining us on the telecast. Now shifting our focus